جی اسٹوڈنٹ، آپ تمام ان اسٹوڈنٹ کا جو اپنے کسی بھی امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں، فار ایگزامپل میٹرک کے ایگزام دینا چاہتے ہیں، انٹر دینا چاہتے ہیں یا دینے جا رہے ہیں، یا آپ بہار کے کسی بھی امتحان میں کمپٹیٹیو ایگزام ہو، ٹیٹ ہو، اسٹیٹ ہو، سی ٹیٹ ہو یا پھر بی پی سی ہو، آپ کسی بھی امتحان میں جا رہے ہو، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر 30 گرامر پرفیکٹ دے رہا ہوں۔ اس 30 کوشچن میں سے 15 کوشچن آپ کے امتحان میں نہیں آئے تو آپ میرا کنٹیکٹ نمبر لے لو، آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا 15 آئے گا، 15 کوشچن نہیں آیا، میں اس کا میں جواب دوں گا۔ چیلنج ہے، اس 30 میں سے 15 کوشچن آپ کے آئیں گے تو آئیں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لکھا ہے چند اصطلاحات کی جانکاری جو کہ بہت ہی اہم ہے، امتحان کے تعلق سے بہت اہم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس 30 کوشچن کے اندر سے آپ کے سوالات اور کوشچن نہ آئے۔ چیلنج ہے، پہلے آپ ویڈیو تو سنیے، اور میں جب آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی آپ نے صحیح کیا ہے تو کم سے کم ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حمد کسے کہتے ہیں؟ میں شروع میں کہا ہوں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ گرامر سیریز چلا رہا ہوں اور ان تمام بچوں کے دل میں درد لیا ہوں جو میٹرک سے لے کر کے کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھنے جا رہے ہیں، گرامر میں اکثر فیل ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بیس پڑھا رہا ہوں۔ جیسے ہمارا یہ 15 ویڈیو مکمل ہو جائے گی، بیس کا بنیادی کا میں آپ کو سب کا سیریز ٹیسٹ لے کر کے آؤں گا، تو ٹیسٹ سیریز لاؤں گا۔ یہ آپ کی گرامر سیریز ہے، پھر آپ کو ٹیسٹ سیریز لے کر کے آؤں گا۔ سنیے، حمد کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ کوئی ایسا سوال دکھا دیجیے مجھے کسی بھی سال کا، پریویس کوشچن کا، یہ سوال نہیں آیا۔ سوال بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن سمجھنا ہے کہ جس نظم میں اللہ کی تعریف ہو اسے ہم حمد کہتے ہیں، بالکل پرفیکٹ ہے۔ نمبر 2، نعت کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں نبی صاحب کی تعریف ہو اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو پڑھانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوال کیسے امتحان میں بنائے جاتے ہیں اور کیسے آپ سے امتحان میں سوال پوچھے جاتے ہیں، بالکل آپ کو کلیئر کر کے دکھاؤں گا۔ پہلے آپ سنیے پہلے آپ، تو جس نظم میں اللہ کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں، اور جس نظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اسے نعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ نمبر 3، منقبت کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں ولیوں کی، بزرگوں کی، دیندار لوگوں کی، نیک لوگوں کی تعریف و توصیف ہو اسے ہم منقبت کہتے ہیں۔ 3 ہو گئے۔ 4 میں آئیے، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں حاکم کی، حکومت کی یا کسی کی بھی تعریف ہو یا برائی ہو۔ دیکھیے یہاں پر یہی فرق ہے، حمد میں برائی نہیں آ سکتی اور نعت میں برائی نہیں، منقبت میں برائی نہیں، چونکہ ایک اللہ کے لیے اسپیشل ہے اور ایک نبی کے لیے اسپیشل ہے اور ایک نیک لوگوں کے لیے اسپیشل ہے، اسپیشلسٹ ہے۔ چوتھا جو ہے یہ عام ہے، جنرل بوگی ہے۔ میں یہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ قصیدہ جس نظم میں حاکم کی ہو، حکومت کی ہو، سرکار کی ہو، گورنمنٹ کی ہو، ہماری ہو، آپ کی ہو یا کسی کی بھی تعریف ہو، یہ کسی درشا رہا ہے، یہ کسی لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جنرل بوگی ہے۔ آپ کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، آپ کی برائی ہو سکتی ہے، میری بھی تعریف ہو سکتی ہے اور میری بھی برائی ہو سکتی ہے۔ تو جس نظم میں حاکم، حکومت یا کسی کی تعریف بھی ہو یا کسی کی برائی، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ 4 چیز سنا آپ نے، یاد رکھیے گا۔ جیسے کہ آپ گاڑی میں سواری کرتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں نا، آج کل بہت اچھی ٹرین نکل چکی ہے، تو اس میں اسپیشل بوگی بھی ہوتا ہے، سیکنڈ سلیپر ہوتا ہے، تھرڈ بھی ہوتا ہے، فرسٹ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، فرسٹ بوگی یعنی کہ اسپیشل جو ہے اے سی والا ہے وہ اللہ کے لیے حمد ہے۔ سیکنڈ اے سی میں آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیکنڈ میں تھرڈ میں آئیے ولی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اور جنرل بوگی میں ہم آپ سب ڈھک جاتے ہیں، سب گھس جاتے ہیں۔
तो जिस नज़म में हाकिम की हो, हुकूमत की हो, आपकी हो, मेरी हो, या किसी की तारीफ भी हो या बुराई हो, वो कसीदा है। जिसमें अल्लाह की तारीफ हो वो हम्द है। जिसमें नबी की तारीफ हो वो नात है। जिसमें नेक लोगों की, बुजुर्गान दीन की, औलिया की ना, वो क्या है, मनकबत है। इस तरह साफ साफ समझाने के बाद से इम्तिहान में क्वेश्चन अगर आता है कि जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो क्या कहते हैं, और विकल्प आपका स्टूडेंट यही रहेगा, क्या रहेगा, आपका विकल्प यही रहेगा, क्या रहेगा, हमद, नात, मनकबत, कसीदा, कसीदा, हमद, नात, मनकबत, कसीदा, विकल्प यही रहेगा। ए में हमद, बी में नात, सी में मनकबत, डी में कसीदा। पूछेगा कि जिस नज़म में अल्लाह के तारीफ को क्या कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को क्या कहते हैं, उसको हम चुनिएगा। जिस नज़म में नबी की तारीफ हो क्या चुनिएगा, तब उसको नात चुनिएगा। जिस नज़म में अल्लाह के बुजुर्गों, नेक बंदों की बड़ाई हो, वलियों की, उसको क्या कहेंगे, उसको हम मनकबत कहेंगे। और आ जाए जिस नज़म में हाकिम, हुकूमत की या किसी की तारीफ हो या तौहीन हो, बुराई हो, तजलील हो, हकारत हो, शिकायत हो, अच्छाई हो, क्या कहते हैं, तो उसको बोलेगा कसीदा कहते हैं। इतना साफ लफ्जों में समझाने के बाद अगर आपने नहीं समझा तो ये भी एक नासमझी आपकी है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमद में अल्लाह की तारीफ, नात में नबी की तारीफ, मनकबत में अल्लाह की नेक बंदों की तारीफ, और कसीदे में किसी की तारीफ। ये जनरल बोगी है। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट में क्या है, 4 के मुनाजात। एक और चीज़ है मुनाजात। मुनाजात किसे कहते हैं, ये भी एक नज़म है। नीचे आएगा, नीचे आ भी रहा है, नज़म किसे कहते हैं, ठीक है। मुनाजात में जिस नज़म में अल्लाह से दुआ की जाए उसे मुनाजात कहते हैं। सवाल में विकल्प में भी आ सकता है कि जिस नज़म में खुदा से दुआ की जाए उसे क्या कहते हैं, नात, मनकबत, कसीदा, मुनाजात के नहीं जनाब। जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो तो वो हमद है। जिस नज़म में नबी की बड़ाई हो, तारीफ हो, तो नात है। जिस नज़म में वलियों की, बुजुर्गों की बड़ाई उसको मनकबत है। जिसमें हाकिम हुकूमत की हो वो तो क्या है, कसीदा है। और जिस नज़म में अल्लाह से दुआ की जाए वो क्या है, मुनाजात है। जैसे कि आपने सुना होगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐसे ही करके बहुत सारे नज़म हैं जो बच्चों के लिए लिखा गया है, जो जिसमें अल्लाह से दुआ की गई है, वो क्या है, बोलेंगे कि मुनाजात है। जिसमें अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाह मुझे ये कर दे, वो कर दे, तो क्या है, मुनाजात है। समझ गए। तो 5 चीज़ में से 2 क्वेश्चन परफेक्ट तौर पे आपके आएंगे। और कौन आएंगे वो मैं नहीं जानता हूँ। हमद पूछेगा कि नात पूछेगा कि मनकबत की, कसीदा की, मुनाजात। इनकी 5 में से 2 क्वेश्चन पक्का आपके आने वाले हैं। आपको ध्यान से समझ लेना है। आगे देखते हैं, नंबर 6 में मरसिया आ गया। मरसिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जिस नज़म में किसी के मरने के बाद रंज व गम का इजहार किया जाए। जिस नज़म में किसी के मरने के बाद रंज व गम का इजहार किया जाए उसे हम मरसिया कहते हैं। इसको कमर में बांध के लपेट लीजिएगा ध्यान में कि हमेशा ये क्वेश्चन ध्यान में आता है। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपने हमद भी सुना है, नात भी सुना, मनकबत भी सुना, मुनाजात भी सुना, कसीदा भी सुना, और आपने नंबर 6 में मरसिया भी सुना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है जानिएगा, वही तो नज़म है। अब नज़म कहते किस किस को जान लीजिए, सबको आपको नज़म कहना होगा। हमद की शक्ल भी है, नज़म है। मनकबत की शक्ल में वो भी नज़म है, और कसीदा में है वो भी नज़म है। नात के शक्ल में नज़म है, और मरसिया के शक्ल में भी क्या है, वो नज़म है। तो नज़म कहते किसके हैं, कि जो चीज़ सजा कर काफिया और रदीफ का लिहाज करके लिखा जाए उसको बोलते हैं नज़म। तो एक है नज़म और एक है नसर। दुनिया की जितनी किताबें लैंग्वेज में है, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, सब में 2 किस्म के सवाल, 2 किस्म के चैप्टर होते हैं। एक होते हैं नज़म, एक होते हैं नसर। इंग्लिश में बोलते हैं पोयम, पोएट्री, और उर्दू में बोलते हैं नज़म और नसर। तो जो सजा कर लिखा गया है वो नज़म है। या तो गज़ल होगा, या तो कसीदा होगा, या मरसिया होगा, या मुनाजात होगा, या हमद होगा। तो यह नज़म है। नज़म जो सजा कर लिखा गया हो काफिया रदीफ के साथ, उसको नज़म बोलते हैं। ठीक है, ये 7 हो गया। ये भी इम्तिहान में
अब 8वां में है नसर, जो किसी एक मौजू पे कहानी के तौर लिखा जाए वो क्या है, नसर है। जैसे कि मिट्टी का तेल एक सबक है, मिट्टी का तेल एक सबक है, क्या है ये, क्या है, एक मौजू है, तो नसर है। कि जो भी कहानी के टाइप पे लिखा जाता है, टाइप पे, वो क्या है, वो नसर है। तो जो सजा कर लिखा जाए वो नज़म है, और जो किसी एक मौजू पे, कहानी के टाइप पे, किसी किस्सा के टाइप पे, एक दास्तान के टाइप पे, या किसी भी टॉपिक पे लिखा जाए वो क्या है, वो नसर है। नज़म सजाकर और नसर कहानी के टाइप लिखे जो क्या है, वो नसर है। आ गया। अब आइए, वाहिद जमा इम्तिहान में आता है कि नहीं आता है? वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। वाहिद एक को और जमा एक से ज़्यादा को। एक जैसे कि लड़का है तो नीचे लड़की देख रहे हैं आप, ऊपर लड़का है तो नीचे लड़के हैं, ऊपर लड़का है नीचे क्या है, लड़के हैं। ऊपर क्या है, देखिए ऊपर में है लड़का तो नीचे है लड़के, वाहिद और जमा हो गया। ऊपर में है लड़की तो नीचे है लड़कियां, ऊपर है कलम नीचे है अकलाम। लिख दो मस्जिद, लिख दो मसाजिद, लिख दो मंदिर, लिख दो मनादिर, लिख दो जो भी लिखो आप, तो एक वाहिद होगा एक जमा होगा। वाहिद एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं, और जमा दो या दो से ज़्यादा को कहते हैं। ठीक है, बहुत परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आपका दिल अगर खुश हो रहा है, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो आपसे मेरी गुजारिश है, हर चाहता हूँ हर साथी, हमारे बहन हो, भाई हो, स्टूडेंट हो, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक करें। अगर लाइक तमाम स्टूडेंट कर देते हैं, तमाम टीचर लोग कर देते हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, मेरी तरफ से तमाम को बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह आप लोग को आपके इम्तिहान में कामयाब करे। चाहे मैट्रिक के बच्चे हों, इंटर के बच्चे हों, या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। बस आपसे यही मेरी गुजारिश है, आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, हाथ उठाइए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए, तो कितने हो गए, 9। वाहिद एक को और जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं ये तमाम वीडियो का PDF आपको मिल जाए, तो हमसे अब इस नंबर पे 80 84 92 80 92 पे रब्ता कम करके चाहे व्हाट्सएप पर करें या कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे इसका PDF ले सकते हैं, ताकि PDF निकल कर रट्टा मार लीजिए या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब आइए देखते हैं 11 में क्या है। मुज़क्कर किसे कहते हैं? क्या इम्तिहान में आपसे मुज़क्कर मुअन्नस नहीं पूछा जाता है? पूछा जाता है। मुज़क्कर किसे कहते हैं? नर जाति को, यानी मर्द जाति को। जैसे कि लड़का है और घोड़ा है, तो मुज़क्कर नर जाति यानी कि मर्दनवा को, मर्द जाति को कहते हैं क्या? मुज़क्कर। 12 में क्या है? मुअन्नस किसे कहते हैं? मादा को। फारसी में नर बोलते हैं, मादा बोलते हैं। उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस, अरबी मुज़क्कर मुअन्नस बोलते हैं, और यहाँ पर आपको मर्द औरत बोलते हैं। ठीक है, तो मुअन्नस मादा यानी औरत जाति को कहते हैं। ऊपर लिखा है लड़का तो नीचे है लड़की, ऊपर है घोड़ा तो नीचे है घोड़ी, ऊपर है खस्सी बकरा, यहाँ रहेगा बकरी। तो इन्हीं को मुज़क्कर मर्द जाति को और मुअन्नस औरत जाति को कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं 13 में। 13 का सवाल आपको बहुत जरूरी समझना है। सिर्फ आपको 15 पढ़ाऊंगा और 15 कल की वीडियो में पढ़ाऊंगा। यह आपकी वीडियो नंबर 9 या 10 होगी सीरीज की। ये जो ग्रामर का सीरीज चल रहा है, ये आपकी वीडियो नंबर 10 होगी। ठीक है ना, वीडियो नंबर ये आपकी 10 होगी। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ज़मीर के अंदर बहुत खेला होता है, मैं अक्सर इम्तिहान में देखता हूँ बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसको समझ लीजिएगा। ज़मीर के 3 सेगे होते हैं, एक गायब होता है, एक हाजिर होता है और एक मुतकल्लिम होता है। इसको विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा और नीचे आ भी रहा है इसका एग्जाम्पल, उसको समझ लीजिएगा आप। ठीक है ना। तो ज़मीर के कितने सेगे होते हैं? 3 होते हैं। गायब होता है, या हाजिर होता है, मुतकल्लिम होता है। अब इन दोनों का 2 होता है। गायब में वाहिद गायब और जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। अब समझिए, गायब किसे कहते हैं? गायब जो नीचे आ रहा है। गायब के भी 2 सेगे हैं, वाहिद गायब जमा गायब। हाजिर के 2 सेगे हैं, वाहिद हाजिर जमा हाजिर। और मुतकल्लिम के भी 2 सेगे हैं, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। और किसको क्या कहते हैं, इसका पहचान क्या है, अलामत क्या है, नीचे 14, 15, 16 में आ रहा है। देखिए ध्यान से आप। गायब किसे कहते हैं? गायब कहते हैं जो मौजूद न हो। जैसे मेरे क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो 8 बच्चे आए हैं, पूछेंगे वो बच्चा कहाँ है, वो यानी कि 9 बच्चे हाजिर है, तो पूछेंगे कि जो बच्चा है, पूछेंगे वो कहाँ है। वह जो हमने कहा, तो वह का मतलब यह कि एक लड़का नहीं है जो गायब है, तो वह आता है वाहिद गायब के लिए, जो मौजूद नहीं है वह। अब मानते नहीं कि 8 बच्चे पढ़ने आया है, 2 नहीं है, तो बोलेंगे वह सब कहाँ है,
वह सब यानी कि दो से ज़्यादा जो हो रहा है, दो या ज़्यादा जब बोलते हैं ना हम, तो वह सब कहाँ है, तो वह सब लग जाएगा तो बोलेंगे कि जमा गायब है। वह कहाँ है, वाहिद गायब। ये वह पहचान है सिंगल पर्सन का और गायब का, और सब लगा देंगे तो जमा पर्सन रहेगा, वो भी गायब रहेगा। वह सब कहाँ है तो हो जाएगा जमा गायब। तो वाहिद गायब में वह लगेगा और जमा गायब में वह सब लगेगा। वह सब कहाँ है तो जमा गायब हो जाएगा। 15 में है कि हाजिर कहते हैं जो मौजूद हो, जो मौजूद हो। पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ था, तो वाहिद गायब, तुम आता, वाहिद हाजिर, सॉरी वाहिद हाजिर तुम के लिए आता है, यानी एक बच्चा हो और वो सिंगल पर्सन में हो, बोलेंगे तुम कहाँ था, तो तुम हो जाएगा हाजिर की पहचान और सिंगल के लिए कि तुम कहाँ था। और 4 बच्चे नहीं आए तो बोलेंगे कल तुम सब कहाँ थे, तो तुम सब बोलेंगे तो हो जाएगा जमा हाजिर। जमा हाजिर यानी कि वाहिद हाजिर तुम कहाँ था और जमा हाजिर तुम सब कहाँ थे। तो पूछेगा इम्तिहान में तुम सब किसकी पहचान है, क्या क्या है, गायब है, हाजिर मुतकल्लिम, बोलेंगे नहीं जनाब ये हाजिर है और तुम सब लगा है तो जमा हाजिर है। वह सब है तो जमा गायब है, तुम सब है जमा हाजिर है, वह है वाहिद गायब है, तुम है तो वाहिद हाजिर है। ठीक है ना। तो वाहिद गायब और जमा गायब की पहचान आपको याद करना है। वह वाहिद गायब के लिए सिंगल पर्सन के लिए, वह सब जमा गायब आता है डबल पर्सन के लिए, और तुम आता है सिंगल पर्सन के लिए जो हाजिर हो, और तुम सब आता है जमा हाजिर के लिए। तुम आता है वाहिद हाजिर और तुम सब आता है जमा हाजिर। और 16वां में आइए, 16वां में मुतकल्लिम जो बात करता हो, जो बात करता है उसको बोलते हैं मुतकल्लिम बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये काम करना है, तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँगा, मैं क्या हूँगा, मुतकल्लिम हूँगा। मैंने कहा तो मैं मुतकल्लिम है, और हम लोगों ने कहा तो हो जाएगा जामा मुतकल्लिम, जामा मुतकल्लिम। इसको ध्यान से पढ़िएगा, यानी कि 13, 14, 15 ध्यान से स्टूडेंट 16 तक आपको पढ़ के जाना है। इसमें से आपके एक से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर सुन लीजिए, गायब जो मौजूद ना हो, हाजिर जो मौजूद हो, मुतकल्लिम जो बोलने वाला हो, बात करता हो। पहचान में क्या है, वह वाहिद गायब, वह सब जमा गायब, तुम वाहिद हाजिर और तुम सब जमा हाजिर, मैं वाहिद मुतकल्लिम की पहचान है और हम सब जमा मुतकल्लिम की पहचान है। बस आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जो बाकी जो 15 बचा है, 16 बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, यानी कि सीरीज जो ग्रामर सीरीज का वीडियो नंबर 10 होगा। और ये हमारे 30 ग्रामर आप जो पढ़ रहे हैं, यानी कि 9 और 10 जो वीडियो पढ़ रहे हैं, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन आना तय है। और आखिर में बोलता हूँ इंशाल्लाह आएगा तो आएगा। बस आपसे गुजारिश है, वीडियो को बंद करता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह कल की फिर वीडियो देखने के लिए, यानी कि वीडियो नंबर 11 देखने के लिए आप मुझे लाइक फॉलो जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।